جس سیل کے ساتھ کامنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے ایڈٹ کمنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب آپ کامنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو شو اور ہائڈ کمنٹس، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے شو ہائڈ کامنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ ٹو ڈیلیٹ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب میں کامنٹس گروپ میں ڈیلیٹ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ یہ دیکھیں کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ فائنلائزنگ اینڈ پروٹیکٹنگ یور ورک بک، جب آپ ایک ورک بک کسی کو ریڈ کرنے یا کسی کو سینڈ کرنے لگیں تو اس سے پہلے ایک بار فائنل اپنی ورک شیٹ کو دیکھ لیں۔ ایکسل میں آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ اسپیلنگز ایرر کو درست اور اپنی ورک بک کی انفارمیشن کو دوسروں سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹو چیک اسپیلنگ، جن سیلز کے اسپیلنگز چیک کرنے ہوں ان کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے اسپیلنگ کمانڈ کو کلک کریں۔ اسپیلنگ ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس سے آپ اسپیلنگ ایرر کو ریویو اور ایڈٹ یعنی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹو یوز دی ڈاکیومنٹ انسپیکٹر، بیک اسٹیج ویو سے انفو کو کلک کریں۔ چیک فار ایشو بٹن کو کلک کریں۔ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ انسپیکٹ ڈاکیومنٹ کو سلیکٹ کریں۔ ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں ان چیک باکسز کو چیک کریں جن کا آپ نے معائنہ کرنا ہے۔ انسپیکٹ بٹن کلک کریں۔ ڈاکیومنٹ یا ورک بک انسپیکٹ ہونے کے بعد ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا جہاں آپ انسپیکٹ ریزلٹ کو ریویو کر سکتے ہیں۔ پروٹیکٹنگ یور ورک بک، ایکسل میں بائی ڈیفالٹ آپ کی ورک بک کوئی بھی ایکسس کر کے اس میں ڈیٹا کو کاپی، ایڈٹ اور ڈیلیٹ کر سکتا ہے جب تک کہ آپ اس ورک بک کو پروٹیکٹ یا محفوظ نہ کر لیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ورک بک کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹو پروٹیکٹ یور ورک بک، فائل ٹیب سے بیک اسٹیج ویو میں جائیں۔ انفو پین سے پروٹیکٹ ورک بک کی کمانڈ کو کلک کریں۔ اب یہاں سے اپنی مرضی کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ یہاں آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں۔ آرکیس فائنل، آپ کی ورک بک فائنل ہو جائے گی لیکن ریڈ اونلی ہوگی، یعنی اس میں ڈیٹا ایڈٹ نہیں ہوگا۔ انکرپٹ ود پاس ورڈ، ورک بک پر پاس ورڈ لگانے کے لیے۔ پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ، آپ کی موجودہ ورک شیٹ جسے آپ نے کھولا ہو صرف وہی پروٹیکٹ ہوگی۔ پروٹیکٹ ورک بک اسٹرکچر، اس سے آپ کی ورک بک کا اسٹرکچر یا تنظیمی ڈھانچہ محفوظ ہوگا، یعنی آپ کی ورک بک میں ورک شیٹس وغیرہ کا اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ ریسٹرکٹ پرمیشن بائی پیپل، اس آپشن سے آپ باقی لوگوں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس ورک بک میں کیے گئے اپنے کام کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ایڈ اے ڈیجیٹل سگنیچر، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو ڈیجیٹلی محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ڈیجیٹل سگنیچر کی پابندی لگا کر آپ ورک بک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ورک بک کو اوپن کرے گا تو پہلے تھم امپریشن یا ڈیجیٹل سگنیچر دے گا تو یہ ورک بک اوپن ہوگی۔ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن کلک کریں۔ ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا، اس کو بھی اوکے کر کے کنفرم کریں۔ یوزنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ، انٹروڈکشن، فرض کریں کہ آپ کی اسپریڈ شیٹ میں ہزاروں روز ہیں۔ اتنی زیادہ روز میں دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ڈیٹا کو اینالائز کیا جائے۔ اگر آپ کی اسپریڈ شیٹ میں سیلز کا ڈیٹا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص پروڈکٹ یا قیمت والا ڈیٹا نمایاں طور پر نظر آئے، یا آپ کی اسپریڈ شیٹ میں اکاؤنٹنگ یا اسٹیٹسٹکس ہیں جن کو آپ نمایاں کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है। जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं। तरीका-ए-कार, प्रोसेस। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। उसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद होंगी। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स। आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, between, Music licensing Equal to, reimagined. text that contains, a date occurring, duplicate values, more rules। greater than। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स that are greater than। इसमें एक वैल्यू Artlist लिखी हुई IO। नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस Music नजर licensing आएंगे। यानी आप reimagined. हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। लेस देन। ये ऑप्शन भी ग्रेटर देन की तरह काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है। Artlist Between। IO. इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स Music जाहिर licensing होगा reimagined. जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं। टेक्स्ट दैट कॉन्टेन्स। जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं। अ डेट अकरिंग। इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, Artlist महीने IO. के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी Music स्प्रेडशीट को licensing हाईलाइट कर सकते reimagined. हैं। टॉप बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस होती हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं। टॉप Artlist 10 IO. आइटम्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस पर लिखा होगा, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप। पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है। Music क्योंकि इस licensing ऑप्शन का नाम ही reimagined. टॉप 10 आइटम्स है, इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी।
और आप बआसानी टॉप 10 वैल्यूज को देख सकते हैं। टॉप 10%, ये ऑप्शन भी पिछली ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरह फीसद के एतबार से वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने पर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही है, लेकिन ये 10% है। इसको भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, ये ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स के बरक्स ऑप्शन है, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 को हाईलाइट किया जाता है। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये ऑप्शन टॉप 10% की मुखालिफ ऑप्शन है, यानी इसको सेलेक्ट करने पर 10% के लिहाज से छोटी वैल्यूज जाहिर होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत से प्रीसेट्स हैं। इनमें डाटा बार्स और कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप स्प्रेडशीट में मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ रंगों और ग्रेडियंट और आइकन्स के साथ जाहिर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स है, जिसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट पर अप्लाइड तमाम रूल्स को साफ या खत्म कर सकते हैं। क्रिएटिंग पिवट टेबल्स। जब हम स्प्रेडशीट में बहुत ज़्यादा डेटा एंटर कर लेते हैं तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में स्प्रेडशीट के एक बहुत कारआमद फीचर पिवट टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदाद शुमार को एंटर किया है। अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें, या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है, या फिर ये मालूम करना हो कि किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम पिवट टेबल से हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डाटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं, इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के नाम एंटर किए हैं। इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज को टोटल कितना पे कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डाटा का पिवट टेबल बनाते हैं। आप जो एम्प्लॉइज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं, हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं। अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है, इसको कहां से ऐड करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है। इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को इस्तेमाल करना है। पिवट टेबल के दूसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि इस पिवट टेबल की रिपोर्ट को इसी वर्कशीट में दिखाना है या किसी और वर्कशीट में डिस्प्ले करवाना है, यानी हम लोकेशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है। हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और फिर पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये क्या, हमें पिवट टेबल की बजाय ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ हमने ये बताना है कि पिवट टेबल के रो कॉलम और डाटा फील्ड में
कौन से कॉलम को एंटर करना है। इसके अलावा हमें स्क्रीन के दाएं जानिब एक विंडो में जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे उनकी हेडिंग भी नजर आ रही हैं। हमने इनको चेक बॉक्स से चेक करके पिवट टेबल में ऐड करना है। Music licensing reimagined. इस एग्जाम्पल में हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को कैलकुलेट करना है, इसलिए फील्ड लिस्ट में हम डिपार्टमेंट को चेक करेंगे। ये देखें, हमने वर्कशीट में एक पिवट टेबल बना लिया। हमारे पिवट टेबल में एक ही कॉलम नजर आ रहा है, लेकिन हम इस पिवट टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स को भी शो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें कॉलम लेबल्स को ऐड करना होगा। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एक फील्ड को चेक करेंगे। ये देखें, पिवट टेबल में एक और कॉलम नजर आना शुरू हो गया। यूजिंग ए पिवट चार्ट। पिवट चार्ट एक रेगुलर चार्ट की तरह ही होता है, Music licensing लेकिन ये सिर्फ reimagined. पिवट टेबल से ही डाटा दिखाता है। बाकी चार्ट्स की तरह आप पिवट चार्ट की टाइप, लेआउट और स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इस मिसाल में हम एक पिवट चार्ट शो करेंगे ताकि हमें हर सेल्स रीजन के ट्रेंड या रुझान का पता चल सके। पिवट टेबल से एक कॉलम मुंतखब करें। ऑप्शंस टैब से Artlist पिवट चार्ट को IO. सिलेक्ट करें। इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक चार्ट टाइप सिलेक्ट करें और ओके क्लिक करें। वर्कशीट में एक पिवट चार्ट बन गया है। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप अपने पिवट टेबल Music में licensing reimagined.